4 of thermodynamics. In this lecture, we'll discuss what's enthalpy of the system. We'll find relationship between enthalpy and internal energy of the system, and we'll solve certain questions which have previously been asked on that very relationship. And later on, we will also explain the concept of heat capacity, and we'll see what's this relation Cp minus Cv is equal to R. That is Mayor's formula. So let us start the topic, that is enthalpy of the system. I hope आप सब बच्चे साथ साथ इसको कॉपी करेंगे because this is very important. This lecture is going to be very important. I hope इस साल इस lecture से question आए. So our today's topic is that's enthalpy of the system. First we'll discuss enthalpy. पहले हम enthalpy को जानेंगे. What's enthalpy? So basically हमने एक relationship develop की थी in the last lecture. That's why I have asked you to understand the first 3 lectures, isn't it? We'll discuss first enthalpy. So enthalpy अगर हम define करेंगे, it is defined at constant pressure. So enthalpy is, तो जो ये हमारे पास enthalpy है, it is the heat contained in the system. साथ साथ आप देखो heat content of the system or heat contained in the system, or you can say heat content of the system. Heat contained in the system. So when I write contained, it's in the system at constant pressure. So enthalpy is defined at constant pressure. This is first important point. Enthalpy is defined at constant pressure. We can define term enthalpy at constant pressure. अगर हम total heat content की बात करेंगे, but at constant pressure, then that is known as enthalpy. Basically हमने एक equation यहाँ पे deduce की थी enthalpy के लिए. This enthalpy is denoted by H. H is equal to E plus P. ये equation हमने last topic में देखी. Enthalpy is equal to H is equal to E plus PV. What is E? Is internal energy, and what is PV? It is pressure volume, product of pressure and volume. Isn't it? Isn't it? ये जो हमारे पास enthalpy होती है, इस enthalpy को ऐसे हम denote करते हैं. ये जो enthalpy होती है, we cannot determine the absolute value of the enthalpy. Its absolute value cannot be determined. Means we cannot determine the value of H. Absolute value cannot be determined. तो केमिस्ट्री में आप एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट डिटरमाइन एब्सोल्यूट वैल्यू, कैन नॉट बी डिटरमाइन. So that's why we determine change in enthalpy. That's why we determine change in enthalpy. So what is change in enthalpy? That's why we determine change in enthalpy. Change in enthalpy is del H. So del H is equal to H final minus H initial. H final minus H initial. फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सिस्टम है, आई हैव दिस सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. मैं इस सिस्टम पे काम कर रहा हूं. लेट द हीट कंटेंट ऑफ दिस सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, लेट एट इनिशियल स्टेज व्हिच इज H1. आफ्टर दैट आई एम सब्जेक्टिंग फर्दर हीट टू द सिस्टम. इसकी एंथैल्पी इंक्रीज होती है, हीट कंटेंट इंक्रीज होता है. लेट द फाइनल स्टेज इज H2. So what is change in enthalpy over here? It will be equal to H final minus H initial. That's H2 minus H1, isn't it? Now see, अगर मेरे पास कोई chemical reaction होगी जिसमें reactants होंगे, and these reactants will surely give me products, and they will give me products. If I have a chemical reaction in which reactants give me products, तो reactants के पास कोई heat content होगा. Let that is enthalpy of the reactants. I denote that as HR. एंड प्रोडक्ट्स के पास कोई एंथैल्पी होगी. लेट द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज Hp. सो इन अ केमिकल रिएक्शन आप कैसे एंथैल्पी को डिफाइन करोगे? चेंज इन एंथैल्पी, दैट्स ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. So this is very important. Enthalpy of products minus enthalpy of reactants. In a chemical reaction, whenever you have a chemical reaction, change in enthalpy is equal to enthalpy of products minus enthalpy of reactants. So what is Hb? It is enthalpy of products. What's Hr? It's enthalpy of reactants, isn't it? तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई. बता मुझे, आगे चलेंगे. ये बात आपको क्लियर हो गई. Now see, यहाँ पे वैल्यूज इंट्रोड्यूस करो. Two cases will arise. Case number 1 will be if Hp is greater than that of Hr. अगर enthalpy of products is greater than that of enthalpy of reactants. मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका वैल्यू ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा है. पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा है मतलब del H will be positive. So del H will be positive.
तो बेसिकली जब भी आपका डेल एच पॉजिटिव होता है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आया है क्वेश्चन एग्जाम में, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल एच इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। तो सेकंड केस यहाँ पे आता है हमारा केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड में अगर हमारे पास एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब इसका वैल्यू ज्यादा है, अगर इसका वैल्यू ज्यादा है ओवरऑल ये टर्म नेगेटिव बनेगी, दैट मींस इन दैट केस डेल एच इज नेगेटिव। Now if del H is negative, process will be exothermic, isn't it? Process is exothermic. Exothermic, by exothermic we mean that heat is released in that process. By endothermic we have to supply heat to bring about the process. Clear यहाँ तक? So this is about introduction. This is all about introduction about enthalpy. So इसको आगे ले जाएंगे, we'll deduce a relationship basically between this del H and del V. Clear? इसको note down करो जल्दी से, हम थोड़ा आगे चलेंगे। इसको नोट डाउन करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, इजंट इट? क्लियर? हैव यू कॉपीड इट? तो इसको जल्दी से आप लोग, हाँ वेरी गुड, डन, वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, विल डिस्कस ये जो हमारे पास एंथैल्पी है H इज इक्वल टू, हाँ H इज इक्वल टू E प्लस PV, E प्लस PV। पता मुझे, मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई थी फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इजंट इट? मैंने कहा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। तो देखो ये जो इंटरनल एनर्जी है, इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज, दिस इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो एडिशन ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिव्स यू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो आई कैन से दैट जो एंथैल्पी है इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी जो है इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, enthalpy is extensive property, it's extensive property। extensive property किसको कहते हैं? extensive property which is dependent upon amount of substance present in the system। so ये जो enthalpy है it's an extensive property, this is also important point। basically ये आपको याद ही है because मैंने बहुत सारी examples इस पे दी है ना। next हमारे पास, अगर मैं इस enthalpy को in terms of change लिखूंगा तो this will be del H is equal to del E, change in internal energy, प्लस डेल इंटू पीवी, प्लस डेल इंटू पीवी। अब देखो यहाँ से हमें दो कंडीशंस निकल सकती है, यहाँ से हमें दो कंडीशंस निकल सकते हैं। पहले प्रेशर को हम कांस्टेंट लेंगे, बेसिकली दिस इज डिफरेंशिएशन, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, DH इज इक्वल टू DE प्लस PdV और D इंटू PV। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे P को कांस्टेंट ले लूंगा, दिस विल बी डेल। तो यहाँ से हमें दो कंडीशंस मिलती है। कंडीशन नंबर एक, डेल H इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट DH आल्सो, you can write it del this dou H also as you wish, जैसे आपकी मर्जी है। so del H is equal to del E, P को बाहर निकालो, मतलब P को कांस्टेंट रखो, this will be P del V। this is condition number first। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है? वॉल्यूम को बाहर निकालेंगे, del P की चेंज लेंगे। so कंडीशन नंबर सेकंड यहाँ पे जो बनेगी दैट इज दिस कंडीशन, ये जो हमारा del H है दिस विल बी इक्वल टू del E, तो यहाँ V को बाहर निकालो इनटू del P। बताओ मुझे इन दो में से कौन सी कंडीशन आपकी एंथैल्पी को डिफाइन करेगी? लेट मी से दिस इज कंडीशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। आउट ऑफ टू इक्वेशंस व्हिच वन विल सेटिस्फाई एंथैल्पी कंडीशन? वेरी गुड, जल्दी से, व्हिच वन विल सेटिस्फाई एंथैल्पी कंडीशन आउट ऑफ दीज टू? व्हिच, हाँ वेरी नाइस, आउट ऑफ दीज टू। देखो मैंने पहले ही कहा कि एंथैल्पी इज डिफाइंड ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर, सो दिस इज माय एंथैल्पी, बिकॉज यहाँ पे मैंने प्रेशर को कांस्टेंट लिया, यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो अगर एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज एंथैल्पी, इक्वेशन ये देगा, इक्वेशन ये देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है एंथैल्पी इज डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज यहाँ पे मैंने प्रेशर का चेंज नहीं लिया। हाँ, फर्स्ट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V, इजंट इट? प्लस P डेल V। अब देखो अगर मैं गैसेस की बात करूंगा, आइडियल गैस की बात करूंगा, अगर मेरे पास कोई आइडियल गैस है, दिस इज ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स, दिस इज वैलिड ओनली फॉर, जो मैं कहने जा रहा हूं दैट्स ओनली वैलिड फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स। अगर आइडियल गैस की बात करूंगा तो PV इज इक्वल टू nRT, इजंट इट? PV इज इक्वल टू nRT। अगर आइडियल गैस की बात करूंगा तो PV इज इक्वल टू nRT।
isn't it? Or P del V is equal to del n RT, del n RT. तो यहाँ पे R constant है, at constant temperature this will be equal to change in the number of moles. बस यहाँ पे इस P del V के बदले हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. Therefore हमारे पास जो इक्वेशन आएगी that is del H is equal to del E plus del Ng. Because I am dealing with gases, that's why I'll write del Ng. Del Ng, what is del Ng? तो इसको डिस्कस करेंगे. Del Ng R. ये जो इक्वेशन है, this is the most important equation. इसको लिखो, स्टार मार्क करो. This is the most important equation. 3 स्टार इसको मार्क करो. First at constant pressure. हाँ, it depends upon temperature. यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हम रखेंगे. यहाँ पे हम टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस के लिए हम T को कांस्टेंट रखेंगे. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हम हीट को सप्लाई करेंगे. दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे del T नहीं दिया. isn't it? So this equation is valid when your temperature is constant. P del V is equal to del n RT. तो देखा है आपने ये कहाँ से आता है? देखो एक बार फिर बताऊंगा. According to Charles law, V is directly proportional to T at constant pressure. P is inversely proportional to V at constant temperature. तो बेसिकली ये इक्वेशन कहाँ से आती है? From Poyle's law, Charles law, Avogadro's law. वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, isn't it? तो दैट्स व्हाई, हाँ इसलिए बोला था मैंने अपना नाम लिखो. अब मैं किसको कहूंगा? डैश 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 डैश. So that's why this is how this T is constant, because we have obtained this equation from Gauss law where T is constant. Clear? What is del Ng? तो del Ng को यहाँ पे डिफाइन करेंगे. It's equal to del Ng is change in the number of moles. It's equal to number of moles of products minus number of moles of reactants, but only gaseous. Number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. तो दिस इज इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको एग्जाम में यहीं पे धोखा देता है. गैसियस प्रोडक्ट्स एंड गैसियस रिएक्टेंट्स. अगर कहीं पे वहां पे सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, तो उनको छोड़ देना है. बस आपको गैसियस प्रोडक्ट्स और गैसियस रिएक्टेंट्स की बात करनी है. isn't it? del Ng किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स. तो मैं यहाँ पे स्मॉल g लिखूंगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. बाकी सबको छोड़ना है. बाकी के साथ हमारा कोई वाबस्ता नहीं है. यहाँ तक क्लियर? इसी के बेस पे मैं एक और इक्वेशन बनाऊंगा नेक्स्ट पेज पे. हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ? जल्दी से इसको नोट डाउन करो. नोट डाउन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर यू पीपल. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. यू विल कम टू नो, मतलब इसी लेक्चर में आपको पता चलेगा व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आप देखोगे इस पे कितने प्रीवियस ईयर आए हैं, तो अभी उनको सॉल्व भी करेंगे. हो गया ये? आई होप ये आपने किया होगा. हाँ, वेरी गुड. ना नेक्स्ट चलते हैं. इस इक्वेशन से थोड़ी एक और इक्वेशन बनाते हैं. तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज del H इज इक्वल टू del E प्लस del Ng RT. दिस इज द इक्वेशन. तो व्हाट इज del H? एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं. व्हाट इज del H? इट इज हीट्स कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट्स इट इज इक्वल टू QP. व्हाट इज del E? तो कल ही हमने del E को डिस्कस किया था. इट इज heat, it is the energy or heat content of the system at constant volume. मतलब this is QV. जिस बच्चे को पता नहीं है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है Q is equal to dQ, Q is equal to dE plus P del V. तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे, दिस P into del V it will become 0. तो अगर ये 0 बनेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Q becomes QV. This V stands for heat is given at constant volume. This is equal to del E. इसको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. That's why इसको मैंने QV लिखा. तो ऑलवेज याद रखना दो इक्वेशन. ये जो आपका QP है इट इज इक्वल टू del H, और ये जो आपका QV है इट इज इक्वल टू del E. और यू कैन राइट दिस QP is equal to DH, और यू कैन राइट दिस QV is equal to DE. और समटाइम्स इन द बुक्स इट इज रिटन एज DU. तो मर्जी है DU से डिनोट करो या DE से डिनोट करो. प्लस del Ng RT. तो बेसिकली यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है. Now this is known as heat content at constant pressure. This is known as heat content at constant volume. पता मुझे सब बच्चों को ये दो इक्वेशंस क्लियर हुई? These are very very two important equations.
सब बच्चों को ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। हाँ बताओ मुझे, सब बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई? ये दोनों इक्वेशंस क्लियर हो गई? सब बच्चों को ये दोनों इक्वेशंस क्लियर हो गई? हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर ये दोनों इक्वेशंस क्लियर हुई, नाउ यहाँ से हमारे पास तीन केसेस अराइज हो सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट, सो व्हाट इज केस नंबर फर्स्ट? इफ डेल एन जी इज इक्वल टू जीरो, अगर डेल एन जी जीरो होगा, तो अगर ये टर्म जीरो होगी, दैट मीन्स जीरो इंटू आर टी इज इक्वल टू जीरो, इन दैट केस del H will be equal to del E, isn't it? This is condition number first. This is condition number first. For example, मेरे पास H2 gas है, it reacts with Cl2 gas, it gives me twice HCl, it gives me twice HCl, that this is also gas, isn't it? तो यहाँ पे आप del Ng निकाल सकते हो. So what is del Ng equal to? Number of moles of products, gaseous products, that is 2, minus number of moles of gaseous reactants, यहाँ से एक, यहाँ से एक और एक हो गए 2, तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो. तो फॉर दिस रिएक्शन, अगर ऐसी रिएक्शन एग्जाम में आएगी, फॉर दिस रिएक्शन del H will be equal to del E. क्लियर? फॉर दिस रिएक्शन del H will be equal to del, हाँ, del H will be equal to del E. आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई. दिस इज केस नंबर फर्स्ट, इसको नोट डाउन करो, विल डिस्कस केस नंबर सेकंड. हाँ, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई. अब इसको आप नोट डाउन करो जल्दी से, विल डिस्कस केस नंबर सेकंड, विल डिस्कस केस नंबर सेकंड. हाँ हो गया, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट टाइम चलते हैं. इफ दिस केस नंबर सेकंड, सॉरी, केस नंबर सेकंड, अगर केस नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे, इफ डेल एन जी इज ग्रेटर देन जीरो. इफ डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो मतलब डेल एन जी किसके बराबर है? डेल एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स. मतलब इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तभी ये ग्रेटर देन जीरो होगा अगर इस पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा होगा, इजंट इट? If del Ng is greater than zero, it's positive. Positive means number of moles of gaseous product ज्यादा होंगे compared to that of number of moles of gaseous reactants. तो तब क्या होगा? हमारा जो del H है, that will be equal to del E plus del Ng RT, isn't it? Plus del Ng RT. मतलब del E को कुछ ऐड करना है, that means del H is greater than that of del E. Isn't it? That means del H is greater than that of del E. क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, चार इक्वेशंस देगा, चार केमिकल रिएक्शंस देगा, बोलेगा फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन del H is greater than that of del E. तो केस नंबर थर्ड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन. जब हम अभी सॉल्व करेंगे तो इनके एग्जांपल्स भी देंगे वहीं पे. केस नंबर थर्ड, तो केस नंबर थर्ड मींस व्हेन del Ng is less than 0. So when is the condition that del Ng will be less than 0? That means number of moles of products minus number of moles of reactants. That means number of moles of products is less than that of number of moles of the reactants, isn't it? So in this case, that this will come out to be negative. That is, आपका del H जो है, that will be negative. Clear? मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि under what conditions del H will be positive, under what conditions del H will be negative. यहाँ तक क्लियर हुई बात? यहाँ तक क्लियर हुई बात? Let us solve certain questions based on this concept. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद let me take examples of this. तो इसकी कुछ examples देंगे. तो मेरे पास for example PCl5 है. It gives me PCl3 plus it gives me Cl2. Let us suppose कि ये भी gaseous है. तो ये एग्जाम में दिया गया होगा, यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट दी गई होगी. तो what is del Ng for this reaction? प्रोडक्ट्स में कितने मोल्स हैं? एक gaseous मतलब 2. रिएक्टेंट्स में कितने हैं? एक माइनस 1, दैट्स इक्वल टू 1. तो यहाँ पे इसके लिए अगर आपको डेल एच देखना है, डेल एच पॉजिटिव बिकॉज डेल एन जी इज पॉजिटिव, इजंट इट? या आप लिख सकते हो कि डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस 1 डेल एन जी आर टी, दैट इज डेल एन जी आर टी फॉर दिस रिएक्शन. दिस इज फॉर दिस रिएक्शन. Now let me take one more example. एक और एग्जांपल लूंगा इसके लिए, so that things will be clear to you people. तो मेरे पास कोई कम रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस, दैट्स हैबर प्रोसेस. ये हैबर प्रोसेस है हाइड्रोजन गैस.
gives 2 times ammonia. This is Haber's process for the manufacture of ammonia. तो इसको बैलेंस करो, पहले आपको बैलेंस्ड इक्वेशन देखनी है, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको बैलेंस्ड इक्वेशन देखनी है। यहाँ पे डेल एन जी निकालो, प्रोडक्ट के 2 हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के 3 + 1 4 -4 इट्स इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आपका डेल एच विल बी इक्वल टू डेल ई -2 RT, डेल ई -2 RT, मतलब डेल एच इज नेगेटिव, isn't it? मतलब डेल एच इज नेगेटिव। क्लियर? बताओ मुझे, सब कुछ यहाँ तक क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर हो गया? इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम क्या कहते हैं उसको, स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करेंगे। Now let us see previous year questions based on this concept. इसको आप नोट डाउन करो, इसको आप नोट डाउन करो जल्दी से। तो later on we'll solve certain questions based on this. पहले सब बच्चे बताओ यहाँ तक आपने नोट डाउन किया? हो गया? Raise your hands if you are done with it. If you are done with it, please raise your hands. Very good, very nice, very nice. Now let us see certain questions based on this concept. इस concept के basis पे हम कुछ questions देखेंगे। So let us see first this question. So this is the question. यहाँ पे हमारे पास question है for the reaction, ये हमारे पास reaction है, तो what is the reaction? For the reaction C3H8 plus 5 times oxygen atom. This gives me 3 times carbon dioxide plus 4 times water. बस यहाँ पे आपको क्या देखना है? This is liquid. Liquid है तो इग्नोर करो, खत्म करो इसको, इसको इग्नोर करो। तो this is gaseous. Gaseous है तो इसको आपको लेना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इट इज gaseous, इसको लेना है। यहाँ पे ये जो प्रोपेन मॉलिक्यूल है दिस इज gaseous, इसको लेना है। बस डेल एन जी पहले निकालो। डेल एन जी विल बी कट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स कितने हैं? gaseous 3। दिस इज नॉट टू बी काउंटेड। लिक्विड और सॉलिड को गोली मारो, बस gaseous को ले लो। तो यहाँ पे 5 + 1 दैट्स इक्वल टू 6, 3 - 6, 3 - 6 इज इक्वल टू -3, मतलब डेल एच विल बी इक्वल टू, हमें निकालना है डेल एच माइनस डेल, डेल एच विल बी इक्वल टू डेल ई -3 RT। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर दिए वेरी नाइस। डेल एच माइनस डेल ई निकालना है तो डेल ई को यहाँ लाओ, इट विल बी इक्वल टू 3 RT -3 RT। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, अरे यार ऐसा मत करो आप। सो द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिस किसी ने भी ये करेक्ट, डी कहाँ से होगा? हाँ, जिस किसी ने भी ये आंसर दिया ना, करेक्ट ऑप्शन इज -3 RT। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज बी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इजंट इट? तो अगर आपको एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछेगा, व्हाट इज डेल ई माइनस डेल एच फॉर दिस रिएक्शन, हो सकता है, जल्दी में गलती नहीं करना। पहले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह रीड करना क्या पूछता है। डेल एच माइनस डेल ई, तो मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई थोड़ा किया, डेल ई माइनस डेल एच निकालना। तो डेल ई माइनस डेल एच मतलब डेल ई यहाँ रखो, डेल एच को यहाँ लाओ, 3 RT यहाँ आएगा, दैट विल बी प्लस 3 RT, isn't it? Del E minus del H will be plus 3 RT, but del H minus del E will be equal to -3 RT. तो बेसिकली यहाँ पे आपको वो आजमाएगा, इनको पता है क्या निकालना है, या जल्दी में गलती करेगा, हेस्ट मेक्स वेस्ट। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है। यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसाता है, यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, दिस इज इथेनॉल, दिस इज लिक्विड, लिक्विड है तो छोड़ो, isn't it? दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज गैसेस, इसको लेना है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस लेना है। दिस इज लिक्विड, इसको छोड़ो। तो डेल एन जी निकालो, डेल एन जी विल बी इक्वल टू 2 - 3, 2 - 3, प्रोडक्ट के 2 हैं, रिएक्टेंट के 3 है, दैट्स -1। सो देयरफॉर क्या निकालना है? विच वन इज ट्रू, विच वन इज ट्रू, मतलब डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी RT, डेल एन जी -1 है, दैट्स -RT, 1 RT मतलब RT। तो कहाँ पे है हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब आपको ये कंसेप्ट पूरा दिमाग में आ गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इफ डेल एच इज द, तो वहीं से दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, देखो क्या दिया गया है। इफ डेल एच इज द चेंज इन द एंथैल्पी,
Del H is change in enthalpy, we know it, and del E is the change in internal energy, we also know it. Accompanying a gaseous reaction, कोई gaseous reaction होती है, then del H is always greater than del E. क्या ये ठीक है? नहीं, it can be equal to, it can be less than, मतलब this is wrong. Del H is less than del E only if the number of moles of the product is greater than the number of moles of the reactant. सोचो इस पे, del H is always less than del E, मतलब ये भी गलत, 50% क्वेश्चन ठीक हुआ. Del H is less than del E only if the number of, बस एक ही काम करना है, हमें बताना है del H कब लेस होगा. del H कब लेस होगा? when del Ng will be negative. del Ng कब नेगेटिव होगा? when Np is less than that of Nr. if the number of moles of the product is less than the number of moles of reactants. हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. जिस किसी ने भी इसका आंसर दिया ना, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. सो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन नंबर डी. सॉरी. सो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? मतलब ये बात भी आपको क्लियर होगी, isn't it? तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 2010. मेंस में ये पूछा गया था जी, मेंस में 3. इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ. हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी, बहुत जल्दी आप देते हो आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, तो देखो 3 moles of an ideal gas, मतलब n is equal to 3. n is equal to 3. 3 moles of an ideal gas expand spontaneously into vacuum. मैंने क्या कहा था, जब भी वैक्यूम की बात हो रही है तो एक्सटर्नल प्रेशर P is equal to 0, वर्क डन निकालना है. इन केमिस्ट्री वर्क डन is equal to minus P external into del V V2 minus V1. तो सिंस वैक्यूम की बात हो रही है, दिस इज 0, देयरफॉर वर्क डन 0 into anything is equal to 0. तो इसका आंसर आएगा डी. हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस. तो वर्क डन पे एक और क्वेश्चन है, दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड. लेट अस सी दैट क्वेश्चन. ये मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है. इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर बता. देखो वर्क डन पे क्वेश्चन पूछा गया है, 2004 नीट में पूछा गया है. नीट 2004 में पूछा गया है ये क्वेश्चन. द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन of a gas from a volume V1 is equal to 4 dm cube तो V2 is equal to 6 dm cube. बताओ मुझे dm cube किसके बराबर होता है? 1 dm cube is equal to, अरे यार डैश डैश, अरे अपना नाम लिखो ना प्लीज, कल से अपना नाम लिखना, डॉट 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 डॉट, अपना नाम कल से लिखना. तो द आंसर यू हैव गिवन इट इज रॉन्ग. सो द आंसर यू हैव गिवन इट इज रॉन्ग. नाउ सी, डीएम क्यूब को मैंने बोला था ये किसके बराबर होता है? इट इज लीटर. 1 लीटर इज इक्वल टू, मतलब डीएम क्यूब को लीटर भी कह सकते हैं, इजंट इट? अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ P इज इक्वल टू 3 atm. P इज इक्वल टू 3 atm. बस वर्क डन निकालना है, बस वर्क डन निकालना है. हाँ फैसल भाई, वेरी गुड. फैसल निरोफर, वेरी गुड. तो यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू, केमिस्ट्री में ऑलवेज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1. तो बस P एक्सटर्नल आपके पास 3 है, V2 आपके पास 6 है, V1 आपके पास 4 है. तो माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 6. तो यहाँ पे आंसर आया माइनस 6. बट यहाँ पे लिखा है, ये किस में आया? ये जो आपका है दिस इज प्रेशर. प्रेशर किस में है? एटमॉस्फेयर. और जो वॉल्यूम है वो डीएम है. डीएम किस में है? लीटर में. दिस इज एटमॉस्फेयर लीटर. ये जो हमने आंसर निकाला दिस इज एटीएम लीटर. लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.32 जूल्स. हमें जूल्स में निकालना है. बस मतलब इसको W को जूल्स में निकालना है. माइनस 6 एटीएम लीटर के बदले इसका वैल्यू इंटू 101.32. आपका आंसर जूल में आ जाएगा. दैट्स माइनस 608 जूल. क्लियर? इस वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी में होता है. Isn't it? हो गया क्लियर? ये हो गया क्लियर? ये क्या स्पेसिफिक हीट को आज ही डिस्कस करें? टेल मी, क्या आप लोग आज ही स्पेसिफिक हीट को पढ़ना चाहते हो? मैं इस पे आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस दूंगा बहुत सारी, याद रख.